All right, everyone over here. So basically, we've already understood what's BY, BDY, MMY, HPY, EAY, right? So all the yields are done. You've understood all the yields, formulas and everything. We will just do the practice of all the yields right now. एक चीज खाली मेरा छूट गया था आपको लिखाना का, तो बुक में आइएगा. यू सी बैंक डिस्काउंट यील्ड इज गिवन दिख रहा है स्टार्टिंग में. उसके नीचे डू यू सी देयर आर बुलेट्स गिवन बैंक डिस्काउंट यील्ड्स एनुअलाइजर्स यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑल. उसके साइड में खाली ये लिख लो एंड उसके अलावा बुक से कुछ नहीं करना होगा. प्रैक्टिस सारा बुक से आप लोग खुद कर लीजिएगा. आई नॉट डू द बुक सम्स इन क्लास बिकॉज दे आर वेरी इजी. आई रादर गिव यू डू डिफिकल्ट सम्स विथ यू. तो बुक सम ऐसे हो जाएगा आप लोग से. सो वील हैव डबल प्रैक्टिस दैट वे. सो क्विकली वो बुलेट्स के साइड में लिख लो. Quickly take this. Solved by HPY and MMY based on FV and not on purchase price, therefore not a true yield. So BDY, one it is based on 360 days and not the actual 365 days. ये खराब चीज हुआ. It is annualizing using simple interest, जबकि compounding का effect आना चाहिए. That's another disadvantage. And it is based on the face value and not on the purchase price. It is not a true yield. It's a discount yield. The true yield, the actual profit, the actual yield is always calculated on the purchase price. बोलो clear? जो अपने ट्रू सेंस में यील्ड का बात करते हैं दैट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द परचेज प्राइस ना. आप 100 इन्वेस्ट करते हैं, आप उसके ऊपर रिटर्न निकालोगे ना. आपका 100 बिकम्स 110. आप 110 के ऊपर थोड़ी कभी भी रिटर्न निकालते हो. सो इट इज नॉट अ यील्ड इन द ट्रू सेंस. सो ये ट्रू यील्ड वाला दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय HPY एंड MMY. MMY does not calculate. MMY calculates the percentage on the purchase price. HPY also calculates the percentage on purchase price, but they are not solving these issues. HPY तो कुछ एनालाइजिंग करता ही नहीं है. एंड MMY भी सिंपल इंटरेस्ट ही यूज करता है, 360 डे ही यूज करता है. सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ MMY एज वेल. MMY खाली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. EAY is solving all the three issues. It includes compounding, it uses 365 days here, and it does calculate the yield on the base price, on the investment value. बोलो क्लियर टिल हियर. इसके अलावा बुक से सेक्शन में कुछ नहीं करना है. जितना भी सम्स बुक का दिया हुआ है बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा वंस यू बैक होम. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माय सम्स. टेक द फर्स्ट वन.
Do this quickly. Try this quickly, I'll do. Done? Alright, let's see. नहीं भी हो तो बाकी लोग एक बार देखो. 150-day certificate of deposit gives a money market yield of 4.5%. सबसे पहले इसका मतलब नहीं है. It doesn't mean all this. 4.5% is the money market yield. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले what does it mean? Time zero, it's a 150-day certificate of deposit equivalent yield. Money market yield क्या था? 360-day year basis पर 360-day year basis पर annualized HPY. MMY was what? HPY into 360 by N. 360 day का yield. So basically सोचो unitary method से 360 days का yield अगर 4.5% है, 1 day का yield कितना होगा? 4.5% डिवाइड बाई 360. Therefore 150 day का yield कितना होगा? 150 डिवाइड बाई 360 into 4.5%. 1.875%. इसका मतलब है 1 becomes 1.01875 over here. That means this. That means if I invest a $1 over here or a $100 over here, it will become 1.01875 or 101.875. इसका मतलब ये है. It does not mean this, it does not mean this. MMY क्या था? HPY into 360 by N ना? And आपका certificate of deposit, your security is a 150-day security. इसका मतलब you are investing 1 at time 0 and you are going to get the money at time 150. इसका मतलब यही हुआ ना? Think. MMY 4.5% is an annualized yield. It has been annualized on the basis of 360 days. तो 360 day का yield अगर 4.5% है, तो 150 day का yield कितना? Unitary method. So 1 becomes 1.01875. That is what it means.
अब जो करना है करो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ना तो ये है ना तो ये है, एंड यू कांट इवन से दैट दीज आर ऑल इनकरेक्ट। समझ में आया एमएमवाई का मतलब क्या है? मनी मार्केट यील्ड इज द एनुअलाइज्ड एचपीवाई। सो 4.5% अगर 360 डे का यील्ड होगा तो एक्चुअल सिक्योरिटी 150 डेज का था, तो उसका यील्ड कितना रहा होगा? 1.875%. So that is 1 becomes 1.01875. So your HPY निकल चुका है। This minus this divide by this. करने का क्या जरूरत है? फेस फ्यूचर प्राइस माइनस परचेज वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, करने का जरूरत थोड़ी है। 1 becomes 1.01875. EAY is equal to 1 becomes 1.01875 in 150 days. 365 डेज में कितना? इतना। इंटरेस्ट पोर्शन, इसका आंसर बताओ। 4.624%. एंड योर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड 1 becomes 1.01875 इन कितना डेज? 150 डेज। 1 ईयर में कितना? 6 months में कितना? -1 into 2. What does 1 become effectively in 6 months? Interest portion -1 into 2 answer. X% per annum compounded semi-annually मतलब क्या? 6 months में 1 क्या बनता है? बनता है, निकाल लो, उसका इंटरेस्ट पोर्शन का डबल कर दो। X% per annum compounded क्वार्टरली निकालना है। 1 एक क्वार्टर में इफेक्टिवली क्या बनता है निकाल लो, फिर वो उसका इंटरेस्ट पोर्शन को इंटू 4 कर दो। X% per annum compounded मंथली निकालना है। What does 1 become in 1 month निकाल लो, उसका इंटरेस्ट पोर्शन को डबल इंटू 12 कर दो, आंसर आ जाएगा। So that's what we are doing over here. It's very easy. वही चीज अगर फॉर्मूला वाइज करोगे, सपोज EAY को यूज करके करोगे, तो 1 प्लस EAY, देखो 1 प्लस EAY विल बी, ये 1 कट जाएगा ना, 1 प्लस EAY विल बी इक्वल टू 1.01875 टू द पावर 365 by 150. Think 1 plus EAY is this, to the power half is this, -1 into 2. फॉर्मूला भी तो यही है, यही तो किया है, फॉर्मूला भी तो यही है। फॉर्मूला वाइज मर्कअप करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, मत करो चीज। डोंट गो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑल द टाइम, ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन। 1 becomes इतना इन 6 months, इंटरेस्ट पोर्शन का डबल, दैट्स द BY. X% per annum compounded semi-annually, मतलब 1 becomes कितना इन 6 months एंड उसका होल स्क्वायर इन 6 months. तो जो इंटरेस्ट पोर्शन 6 months में आ रहा है उसका डबल ही तो रेट होता है। 12% per annum compounded semi-annually मतलब 1.06 1.06 स्क्वायर, तो 6 का डबल से ही तो 12% per annum compounded semi-annually आ रहा है कि 1 6 months में क्या बन रहा है, उसका इंटरेस्ट पोर्शन का डबल। बोलिए फॉलोइंग दिस एवरीवन, प्रॉब्लम एनीवन? देखो बताओ, एंड नेक्स्ट सम लो। Try this quickly.
Done. Let's see quickly. It means simply this much. It means simply this much. Bond equivalent yield 4.8% मतलब क्या? X% per annum compounded semi-annually. Bond equivalent yield 4.8% मतलब क्या? X% per annum compounded semi-annually basis पर. 1 becomes 1.024, that becomes 1.024 square. इसका मतलब इतना ही है कि 1 becomes 1.024 in 6 months. आगे जो करना है करो. Got it? So basically ये EAY तो निकल ही गया. That's EAY. You would notice HPY को छोड़ के बाकी सारा का सारा yield जितना भी आएगा ना almost आसपास आएगा. So if you're making an error, please be very careful. Because see, every yield is per annum basis. कोई में simple, कोई में compound, कोई में 360, 365 हल्का फुल्का differences है. Ultimately, all the rates are per annum except HPY, BY, MMY, BDY, EAY. Every rate will be very close to each other. वो ये 0.5% ऊपर नीचे में सब आ जाएगा आंसर. सो इन केस यू गॉट एन आंसर विच इज वेरी वेरी दूर में, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विथ योर आंसर प्रॉब्ली. यू नो, अप्लाई दीज थिंग्स. ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ये सब जगह पर. EAY इज दिस आंसर कितना? 4.857%. Of course, your EAY will always be more than BEY because effectively ये annual basis, ये semi annual basis compounding. तो कमती रेट पे सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो इक्विवेलेंट एनुअल रेट पे ज्यादा अमाउंट आ जाएगा ना. नेक्स्ट HPY एंड MMY फॉर 100-day सिक्योरिटी. लेट्स सी हाउ विल दैट वर्क. 1 becomes 1.024 in 6 months. 1 becomes 1.024 in 6 months. 1 becomes 1.024 square in 1 year. 1 becomes 1.024 square in 1 year. तो 1 डे में कितना? तो 100 डेज में कितना? 100 by 365. दैट इज इक्वल टू, बताओ, 1.024 square, 024 square to the power bracket open 100 divided by 365 bracket close equals to 1.024 square to the power bracket open 1.0130. HPY is equal to 1.3%. This minus this divide by this करूंगा थोड़ी बैठ के. And MMY 1.3 into 360 by 100. That is 4.7%. HPY is a holding period yield. होल्डिंग पीरियड यील्ड किसका? इस सिक्योरिटी का ना. तो ये 100 डे के लिए अगर कोई होल्ड करेगा तो उसका रिटर्न कितना आएगा? 1.3%. 1.3% इज 100 डे का यील्ड. तो 360 डे का कितना? सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर यूजिंग 360 डे ईयर. So MMY is simply 1.3 into 360 by 100, 4.7. See, all the answers are very very close to each other except HPY, because HPY is the only one that is not annualized. See if this is a problem. Take the solution if you want. I'm giving you another one. Do this quickly. एंड ये मत सोचो फास्ट जा रहा है. प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज करना होगा. स्पेशली फॉर द वर्किंग पीपल नॉट इन टच विद स्टडीज फॉर अ व्हाइल, योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल गोज डाउन विथ एज and with your responsibilities building up. So concentration level increase करिए. When you are studying, especially the video students, please अपना WhatsApp side रखा करो, data network off करके रखा करो. You want to become more productive? Switch on your data network twice or thrice a day. It helps.
So you need to increase your concentration level. It's very important. Concentration level is going down nowadays. Sabka. Try this. जो हम लोग सबसे पहले वाले किए थे ना, ये वाला, is it the case that normally जैसे 1 rupees becoming 1.12, तो अगर हमें 1 year पे, this is 1 year time span, तो अगर हमें 6 महीने पे करना है या 3 months पे करना है, when we are using this, it's basically, and मतलब ये 1/3 पे हुआ, so 1/3 of 12 is 4 months पे ये हो रहा है, so it's like compounding. Yes. So मतलब ये चीज़ होगा, Ultimately it become 1.12. हाँ, मतलब it's like compounding after every 3 months. Yes. Effectively 1 becomes 1.12 मतलब कुछ भी कर लो, effectively it has to become 1.12. तो मतलब बेसिकली हम लोग इसको हाँ, तो 3 months में 3 महीने पे कंपाउंड करके देते हैं. Yes. Done, guys. Done. गाइज हो गया आप लोग का? ऑलराइट, लेट्स सी. नहीं भी हो तो देखो एक बार एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे आई एम गोइंग अबाउट इट. ठीक है. कोटेड प्राइस इज 96.5. कोटेड प्राइस इज नॉट इक्वल टू परचेज प्राइस. कोटेड प्राइस इज नॉट इक्वल टू परचेज प्राइस. सबसे पहला चीज, कोटेड प्राइस is equal to 100 minus BDY. So BDY is equal to 3.5%. क्योंकि कोटेड प्राइस क्या होता है, कंपैरिजन बिकम्स इजियर.
इसीलिए जो एनुअलाइज डिस्काउंट होता है ना, 100 माइनस एनुअलाइज डिस्काउंट को करके हम लोग कोटेड प्राइस देते हैं, तो उससे ना अलग अलग 50 डे, 100 डे, 120 डे सिक्योरिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो। परचेज प्राइस को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ डेज मतलब लोअर द परचेजिंग प्राइस, सो यू कैन नॉट कंपेयर द सिक्योरिटी विच वन इज चीपर, विच वन इज एक्सपेंसिव, विच वन टू बाय, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ डेज लोअर विल बी द परचेजिंग प्राइस। सो कोटेड प्राइस इज 100 माइनस BDY। नाउ ऑल द कोटेड प्राइस ऑफ डिफरेंट डेज का ट्रेजरी बिल्स बिकम कंपेरेबल। सो योर BDY इज 3.5%। BDY 3.5% का मतलब ये नहीं है कि टाइम 0 से 150 डे, 360 डे, 365 डेज 1 becomes 1.035. It does not mean that. 3.5% का मतलब क्या? 3.5% का मतलब 360 डेज का डिस्काउंट इज इक्वल टू 3.5%। तो मेरा 150 डे का डिस्काउंट कितना? My discount should be this much. 150 डे का डिस्काउंट कितना? 3.5% इंटू 150 बाई 360, 1.4583%, करेक्ट? सो बेसिकली इफ यू वांट 1 over here, it will be trading at 1.4583% का डिस्काउंट over here. डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। यहां अगर 1 चाहिए, डज नॉट मीन 1 डज नॉट बिकम 1.04853, 4853 बोला ना, 1.4583%. It does not mean 1 becomes 1.014583. That is wrong. BDY is the discount. आपने डिस्काउंट को एनुअलाइज किया था, तो 360 डे का डिस्काउंट 3.5%, तो 150 डे का कितना? 1.4583% डिस्काउंट, यूनिटरी मेथड। डिस्काउंट जो है वो ये चीज आज डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होगा। इट्स नॉट एन एड ऑन यील्ड, इट्स नॉट एन यील्ड, it's not a yield, it is a discount. So one is going to be trading at कितना over here? 0.98, बोलो, अरे 100 माइनस 1.4583% करोगे तो 98.5417 आएगा। I like to use $1, so $1, every $1 is trading today at 0.985417. इसका मतलब यही हुआ। बोलो यहां तक किसको प्रॉब्लम हो रहा है? 3.5, 96.5 is quoted price. Quoted price is 100 minus BDY. 100 minus BDY is your quoted price. तो BDY is 3.5%. 3.5% is 360 days का डिस्काउंट, नॉट yield. बैंक डिस्काउंट yield नाम से समझने का ट्राई करो। ट्रेजरी बिल्स बैंक का सिक्योरिटी, डिस्काउंट yield, तो बैंक डिस्काउंट yield 3.5% is a discount for 360 days, तो 150 डे का डिस्काउंट कितना? It's a simple unitary method, 1.4583%. Discount is not calculated on purchase price. Purchase price पे yield calculate होता है. Discount is calculated on the future value, face value. Face value का कितना डिस्काउंट पे आज बिक रहा है सिक्योरिटी? 1.4583% डिस्काउंट पे. So 1 minus 1.4583% is giving you 0.985417. That becomes the purchase price. This is the purchase price. मेरा BDY निकल चुका है खाली, बाकी इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इधर देखो 1.985417 बिकम्स 1, तो यहां 1 इन्वेस्ट करेंगे तो बिकम कितना? 1 बिकम्स इतना इन 150 डेज, तो 365 डेज में कितना? -1 इज EY। 0.98515417 इन्वेस्ट करेंगे तो दैट बिकम्स $1 over here. So if I invest $1, how much will that become? 1 divide by this much times, unitary method again. और कैलकुलेटर में प्लीज रेसिप्रोकल बटन यूज करो आराम से। कैलकुलेटर में you can easily use a reciprocal button. That is what $1 becomes in 150 days. So 365 days में कितना? To the power 365 by 150 -1 करोगे, EY आ गया। First one done. 1 becomes इतना इन 150 डेज, तो 365 डेज में कितना? इतना। हाफ ईयर में कितना? 6 मंथ्स में इतना। इंटरेस्ट कंपोनेंट इनटू 2, दैट इज योर BEY। डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन एंड लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। आंसर्स बताइएगा, मेरे को इरेज करना पड़ेगा। आई नीड टू डू MMY एज वेल। दिस वन 3.6393%, which is very close to this, fine. और ये वाला
इसका आंसर इससे कम ही होगा 60। हल्का फुल्का डेसिमल में एरर है तो इट्स ओके, बट मोर लेस दिस इज द आंसर. क्विकली टेक दिस डाउन, मेरे को लास्ट पार्ट करना है. एनीवन डिड द लास्ट पार्ट, हैज डन द लास्ट पार्ट? डी कोई से नहीं हुआ है? ठीक है, डू इट. डी में MMY फॉर अ 300 डेज सीरीज बता रहा हूं. डन. कॉपी टिल हियर. समझ में आ रहा है सबको? कौन सा EY? सो बेसिकली अपने क्या बोल रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया. ये इन्वेस्ट करेंगे, ये बनेगा. सो इफ यू पुट 0.985417 टुडे, इट बिकम्स $1 in 150 days. सो $1 को इन्वेस्ट करोगे तो कितना बनेगा? 1 by 0.985417. 150 डेज में $1 बिकम्स इतना, तो पूरा साल में कितना? टू द पावर 365 by 150. तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कितना? -1. एंड यही पूरा साल में इतना बन रहा है, 6 months में कितना? टू द पावर हाफ. इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इंटू 2. आंसर. Guys over here please. We need to calculate here. We need to calculate the MMY for a 300-day certificate of deposit. You put 0.985417 today, it becomes $1 in 150 days. So यहाँ $1 डालेंगे तो 300 days में कितना बनेगा? You should have squared it. You should have been faster. 1 becomes इतना, 0.985417 becomes $1 in 150 days. तो 300 days में कितना बनेगा? To the power 300 by 150. 1.02 985 So 1 becomes 1.029854. इसका HPY is 2.9854%. ये रिटर्न अगर 300 डेज का है तो 360 का कितना? That is your MMY. Very simple. देखो समझो, take this down and next sum. Do this quickly.
हो रहा है? डन. लेट्स सी. हो गया ना सबका? लेट्स सी दिस. अच्छा है, तुम लोग बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं. गुड. 90 days certificate of deposit MMY is equal to 4.8%. MMY 4.8% मतलब 360 डे का yield is equal to 4.8%. तो 90 डे का yield कितना होगा? 1.2%. पेंटली हो रहा है यार, 1/4 90 by 360, राइट? इसका मतलब टाइम 0 पे 90 डेज के लिए इन्वेस्ट करोगे, 1 becomes 1.012. दैट इज व्हाट इट मीन्स. 4.8% is a money market yield, that is 360 डे बेसिस पर सिंपल इंटरेस्ट यूज करके एनुअलाइज किया हुआ yield, करेक्ट? 4.8% 360 डे का yield है, तो 90 डे का yield कितना होगा? 90 by 360 into 4.8, that is 1.2%. So 1 becomes 1.012 in 90 days. So first one EAY is equal to 1.012 is what 1 becomes in 90 days. तो 365 days में कितना? To the power 365 by 90 minus 1 is the interest portion, that is 956. Great. 4.9566%, close to 4.8, so fine. Then HPY. HPY इसी सिक्योरिटी का 1.2% दिख रहा हो तो. पार्ट सी BEY 1 becomes 1.012 in 90 days. तो पूरा साल में कितना? इतना. 6 months में इतना. -1 into 2. आंसर 4.8967%. ग्रेट. लास्ट वन, नहीं 2 है यहां तक, ठीक है सबको? प्रॉब्लम बोलो. BDY for a 200-day table and its quoted price. So let's see this. Time 0, time 200. 1 becomes 1.012 in 90 days. So how much will it become in 200 days? This much? हाँ बताओ. 35. Alright. इसमें ना 2 तरीके से कर सकते हो आप. Is it okay if I erase ABC? Everyone is done till here, right?
Alright. So 1 becomes 1.012 in 90 days. तो 200 days में कितना? To the power 200 by 90. That gives me 1.303534. तो 200 days में 1 becomes 1.303534. ठीक है? दो तरीके से कर सकते हो. या तो BDY का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो. 1 becomes 1.303534. So डिस्काउंट कितना हुआ? इतना. Discount is always calculated on face value. By 200. ये सब कंफ्यूजन मत रखना कि 90 होगा कि 200 होगा. इतना 200 डे का ये डिस्काउंट है तो 360 डे का कितना? ये 200 डेज का डिस्काउंट निकाले ना. You've calculated the discount for 200 day period. So of course when you analyze it's going to be 360 divided by 200. एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हुआ ना 360 by 200 करना 360 by 90 करना, जो आंसर 4.8 के आसपास होगा दैट विल बी द आंसर. एटलीस्ट कॉमन सेंस तो है कि HPY छोड़ करके बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम टाइप का आएगा. सो कहीं कंफ्यूज हो गए, पैनिक मोड में है, तो ये सब चीज में एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए. आई गिव यू लॉट ऑफ ट्रिक्स. आई टेल यू एग्जैक्टली कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रहा है. मिस्टेक्स का लिस्ट आई टोल्ड यू, वो करना चालू करो. एंड कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा आई टेल यू. कहाँ एंड ट्रिक्स एंड ऑल विल डू इट एट द एंड. सो दिस इज दिस. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. ये फॉर्मूला ही है. इसका फॉर्मूला क्या था? f minus p by f into 360 by n. Instead of mugging up the formula, I'm just explaining it to you. कि अपना ये डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको अपने एनुअलाइज कर रहे हैं. और क्या? That's all. That is fine with everybody. Another way of doing the same calculation could be 1 becomes 1.303534. So if I want 1 over here, what do I invest over here? इसका reciprocal. Tell me वो amount बताओ. 0.7 नहीं हो सकता. Sorry. I think I have made a mistake. 1.013. 1.013033534 वो आएगा ना? कुछ नहीं कुछ गलत किया है यार यहाँ पे भी. 1.30 नहीं हो सकता. एक सेकेंड, ये अमाउंट बताओ ना एक बार वापस. ये कुछ ये अमाउंट गलत दिया मेरे को. 1.30 हो ही नहीं सकता. 1.012 है. 1.012 1.2%. 1.30 मतलब 30%. कैसे गलत आंसर दिया. इतना देर बात करेक्ट किया आप लोग. रेक्टिफाई दिस प्लीज. सॉरी. सो 1 becomes 1.0268 in 200 days. राइट. सो अगर यहां पे 1 चाहिए तो यहां कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 डिवाइड बाय 1.0268. दैट इज हाउ मच? 0.9738. 1 becomes 1.0268 over here. तो यहां अगर 1 चाहिए तो कितना डालना पड़ेगा? 0.9738. तो डिस्काउंट कितना हुआ इसमें? 2.62%. 2.62 is the discount. Discounted is calculated on 1. तो 2.62% आ गया. तो इसको डायरेक्टली इंटू 360 by 200 कर सकते हो. नथिंग बिग डील. एक बार ध्यान दो. आई नो इट्स कंफ्यूजिंग. यही तो है. When I'm saying what does 1 become? 1 becomes 1.0268. यहां अगर 1 चाहिए तो कितना डालना पड़ेगा? 0.9738. That is what? 1 divided by 1.0268 ना. इसको 1 माइनस दिस करेंगे तो डिस्काउंट आ रहा है और वही डिस्काउंट को एनालाइज कर रहे हो. देखने का तरीका है. यू कैन डू इट इन मल्टीपल वेज. 1 becomes 1.0268. The problem is that 0.0268 का डिस्काउंट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 1.0268. टेक्निकली अगर देखोगे परचेज प्राइस चाहिए तो 0.9738 आएगा. योर परचेज प्राइस इज 0.9738. परचेज प्राइस 0.9738 हुआ ना, बिकॉज द ट्रेजरी बिल ऑलवेज ट्रेड्स एट फेस वैल्यू. ऐसे तो फिर हर चीज का परचेज प्राइस 1 ही आ जाएगा. 1 बिकम्स कितना? वैसे नहीं होता है. ट्रेजरी बिल का परचेज प्राइस यू ऑलवेज गेटिंग अ फेस वैल्यू ओवर हियर, राइट. सो आंसर में ऑप्शन या तो 0.9738 होगा या 97.38 होगा या 973.8 होगा. इट विल बी वन ऑफ द वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू थिंक इज द फेस वैल्यू.
सो 1 के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट कितना 0.9738, डिस्काउंट कितना 1 माइनस दैट, एंड डिस्काउंट को परसेंटेज करने का जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज फेस वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में है, इंटू 360 बाई 200. आंसर सेम आएगा एंड यू शुड बी कंफर्टेबल टू गेट द आंसर इन एनी मैनर. आंसर कितना है इसका बताना ना एक बार. 4.708%. तो कोटेड प्राइस कितना होगा? राउंडिंग ऑफ में अगर हल्का सा डिफरेंस है तो इट्स ओके. 4.6980 आ रही है. 4.698 एंड 4.708 इज वेरी क्लोज, सो इट्स ओके. वो राउंडिंग ऑफ होगा. मैंने यहाँ पे 4 डेसिमल लिए है, आप 6 करोगे तो ठीक हो जाएगा. द बेस्ट वे इज डोंट राइट एनी नंबर, पूरा डायरेक्ट कैलकुलेटर में मारो. रेसिप्रोकल ब्रैकेट यूज करके पूरा डायरेक्टली कैलकुलेटर में मारो. Someone is getting 4.6978 or 87 or something, it's okay. Understanding this part पूरा का पूरा, and हर तरीके से नंबर घुमाना समझ में आ रहा है. कोटेड प्राइस समझ में आ रहा है. परचेज प्राइस इज 97.38. You can take that if you want. 716 and 708 is very close, yeah. It's not even 0.01%. It's okay. जो भी आंसर आ रहा है 4.716, 708 चलेगा. इज एवरीवन कंफर्टेबल? यहां तक समझ में आ रहा है पूरा चीज? श्योर? I'll erase this. Next question. हाँ, लास्ट पार्ट छोड़ दूं. ओ लास्ट पार्ट रह गया, सॉरी. अभी ना MMY सेम नहीं होता है. MMY सेम नहीं होता है. 780 डे सिक्योरिटी मतलब इफ आई पुट 1 हियर इट बिकम्स 1.012 इन हाउ मेनी डेज? 200 डेज, सॉरी 90 डेज. तो 780 डेज में कितना? टू द पावर 780 बाई 90, दैट इज कितना बताइए? 1 becomes 1.012 in 90 days. That was given. इससे वही आया ना? That is 1.1089. मतलब 10.89% is the holding period yield for 780 days. तो 360 का कितना? Your MMY 90 डे सिक्योरिटी का MMY अलग है. सोचो 90 डे का HPY को एनुअलाइज कर रहे हैं और एक 7 to 80 डे का MMY को एनुअलाइज कर रहे हो. दिस वाज गिवन. मार्केट में एक ऐसा सिक्योरिटी है जो टाइम 0 से लेकर के 90 पर 1.012 बन जा रहा है. मार्केट में ऐसा सिक्योरिटी नहीं है जो 1 का इस तरीके से 780 करके बनेगा. वी डोंट हैव दैट. देयर इज अ सिक्योरिटी दैट बिकम्स 1 का 1.012 इन 780 डेज. You cannot use इसका MMY 4.8%. You can't do 4.8 into 780 by 360 and tell me कि 1 becomes इतना in 780 days. क्योंकि ये MMY इस सिक्योरिटी का है, इस सिक्योरिटी का MMY अलग होगा. Are you understanding what I'm saying? You cannot say कि MMY 4.8% 90 डे का है तो 780 डे का MMY के लिए बोलेंगे 4.8 into 780 by 360 करके. You can't say कि 1 becomes इतना times in 780 days. You can't do that. MMY 90 डे सिक्योरिटी का ये है. इस सिक्योरिटी का MMY कुछ और होगा and that's what you're supposed to find out. This tells you that 1 does become 1.012 in 90 days. तो अगर ऐसा ही सिक्योरिटी सोचो ना, इसी सिक्योरिटी को 1 को डाले 1.012 बना, इसको वापस इन्वेस्ट किए कितना बना? 1.012 टू द स्क्वायर. करते करते 780 डेज में कितना बनेगा? टू द पावर 780 by 90. बट यू डोंट हैव अ सिक्योरिटी जो 1 इतना बन जाएगा 780 डेज में. You have a security जो कि 1 becomes 1.012 in 90 days. You don't have a security कि 1 will become इतना in 780 days directly. So इसका MMY को यूज करके ऐसे करके 4.8% into 780 by 360 कि 1 becomes इतना in 780 days, वो सब काम मत करना. MMY इस CD का MMY is this. So what is the MMY of this one? HPY निकालो into 360 by n करो, आंसर आ जाएगा. बोलो comfortable or not? Sure यहाँ तक? You want to take this down? Take it. I'll give you 4-5 questions for practice at home.
ये एक बार देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख रहा हूं बोर्ड पे. टेक दिस डाउन इफ एनीवन हैजंट येट. Wednesday will be, I'll talk about it. यहाँ तक done? Copied everything? Sorted? ये कौन सा नंबर था? 4. थोड़ा सा तो समझा कर रहा हूँ, सारा चेंज करा रहा है मेरे से. क्या 200 days bill?
If everybody is able to solve it, I'll probably not do it in class and just give you the solution in a PDF or something. If बहुत problem होगा तो maybe I'll solve it all in the class. But try करके अच्छे से आइएगा so that we can reconcile the answers and I can get a PDF made and send it to you for all these solutions. ठीक है? Saturday. Take this. And करिएगा please. Nobody don't come without doing it. Done. ठीक है लिख लो मेरे को आदत है